Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us for this very important session with a very special leader. Shri Nitin Gadkari ji, it is an honor to have you with us at the National Leadership Conclave, the 11th in its series. Your leadership in expanding India's infrastructure and advancing the use of local fuels has been pivotal in driving growth and transformation. Your initiatives to reduce India's dependence on imported energy are particularly significant at this time. We look forward to your insights on strengthening India's infrastructure and mobility resilience. Naren, Vishal, Vineet, thank you for joining us and your continued support to IMA. This session also marks the presentation of the IMA Fellowship and the Award for MSME Innovation. We extend our congratulations to IMA's newest fellow, Mr. Yezdi Nagpurwala, and Nandan Mishra, co-founder of AIGO 8 AI, whose contributions enrich the management community. Ladies and gentlemen, expansion of infrastructure and transition to new mobility technologies are both markers and enablers of India's economic growth. India's roads and highways are absolutely critical to the economy's strength and resilience, carrying about 70% of the country's cargo and 85% of passenger traffic. Under the leadership of Shri Gadkari, India has built extensive networks of highways and expressways, with government spending on this sector increasing sixfold over the past decade. This investment has enabled the economy to grow at close to 7% annually, while supporting industries such as steel, cement, construction equipment, and digital systems. Each new project creates jobs, stimulates business opportunities, and lays the foundation for future growth. The increasing connectivity of ports, airports, industrial hubs, and commercial nodes has boosted the vitality of the domestic economy, while linking border areas with the country's heartland has enhanced India's strategic depth and resilience. India's resilience on imported energy remains a critical vulnerability. The Honorable Minister's initiatives to promote electric vehicles and biofuels have made a strong impact. Going forward, sustained government support will be essential to encourage both the manufacturing and adoption of next-generation vehicles. Industry and consumers, too, must play a decisive role in building transportation resilience. With these words, we look forward to an engaging discussion that will shape ideas for India's future growth and resilience. Thank you. Thank you, ma'am. I now invite Mr. T.V. Narendran, President IMA, to deliver his welcome address. Good afternoon, everyone. Mr. Nitin Gadkari, Minister of Road Transport and Highways, Government of India, my colleagues from IMA, Vishal, Vineet, and Rekha, ladies and gentlemen. Welcome to the special plenary session with the key architect of New India, Mr. Nitin Gadkari. Honorable Minister, it's a privilege to have you with us today, and a very warm welcome to the National Leadership Conclave. Many thanks for joining us and for agreeing to share your thoughts on building resilience into infrastructure and mobility for securing India's growth momentum. Thank you also for agreeing to present the IMA Awards and Fellowship. Wars, tariffs, export bans, and self-serving regulations around the world are impeding India's growth momentum to some extent. The disruption of energy and chemicals supplies from West Asia is also affecting businesses, and the uncertainty of what happens during and after the truce is keeping everybody anxious. One wishes that the truce leads to an end of the war and safe transportation of energy and materials through the region. The rationing and reallocation of fuels has impacted industrial production to some extent, and a fertilizer shortage could affect the next crop season. While it is a crisis, it is also an opportunity for India to increase its efforts to achieve greater economic resilience. One of the biggest comforts India can draw from its progress during the past decade is its much expanded and modern infrastructure, particularly the roads, highways, and logistics facilities. Under the leadership of Mr. Gadkari, there has been a special emphasis on enabling high-speed, high-volume transportation between India's inland production hubs and its ports. Moreover, the linking of much of the country with motorable roads and the creation of high-speed corridors across regions assures vitality of the domestic economy. The use of technology in tolling and traffic management has accelerated movement of goods and people and has brought down logistics costs. The transportation infrastructure has become a leading catalyst of industrialization and commercialization of vast areas of India's hinterland, which has created fresh capacity for economic growth.
The Honorable Minister has also bolstered India's economic resilience by reducing dependence on imported fuels. The compulsory mixing of increased amounts of ethanol with petrol and the incentives for shifting to electric vehicles are helping India localize its transportation fuel. The fuel efficiency improvements achieved through better surfacing of roads to allow continuous movement over long distances is also helping. A lot of wastage of fuels is avoided by integrating different transportation modes as interlinked roads, highways, railways, waterways, ports, airports and warehouses allow seamless and efficient transfer from one mode to another. This also makes each mode more productive and resilient. Mr. Gadkari is also promoting recycling of road materials, and I'm personally aware because he's really played a role in recycling many of the byproducts that's generated from the steel industry. Also, the use of plastic waste in road construction reduces the energy and material intensity of infrastructure creation. Economic growth and resilience requires not only building transportation infrastructure, but also making it reliable and durable. The Honorable Minister has made it his priority to improve road design, engineering and construction. The longevity of infrastructure strength, capacity and relevance is vital for the economy's resilience, and India's domestic construction materials have helped shield the infrastructure creation against external supply and price shocks. The government-industry partnership in infrastructure creation and mobility transformation is necessary for strong and resilient economic growth. There is a strong private presence in the logistics sector. My colleague Vineet, in some sense, represents that sector as well. And the private sector can catalyze much greater monetization of roads and highways. India's automotive industry is trying to align with Mr. Gadkari's goal of shifting India's vehicles from imported oil and gas to locally produced batteries, biofuels and hydrogen. I can assure the Honorable Minister that Indian industry is prepared to partner the government in all its initiatives to strengthen resilience in the Indian economy. We look forward to hearing the Honorable Minister's address to learn how the government and the industry can collaborate in strengthening India's economic growth and countering its external risks. Thank you very much. Thank you, sir. And now, we move on to recognize excellence and innovation through the IMA Awards and Fellowship. IMA Dr. J.S. Juneja Award for Creativity and Innovation in MSMEs. May I first request Dr. J.S. Juneja to kindly join us on stage for the first award. Our first award recognizes innovation and creativity in the MSME sector, an engine of grassroots transformation in India. A pioneering industrial artificial intelligence company, Algo 8 AI, is transforming industrial operations through machine learning, predictive analytics, and computer vision-based decision intelligence. Its Plant Brain platform integrates production, reliability, and sustainability intelligence, enabling real-time monitoring, predictive maintenance, quality optimization, and energy efficiency across manufacturing, metals, energy, oil and gas, and power. Algo 8 AI has delivered measurable impact, including up to 80% reduction in unplanned downtime, 90% reduction in manual inspection, and improvements in throughout quality and efficiency. Founded by IIT graduates and built on industrial expertise, the company has deployed solutions across India, North America, the Middle East, and Europe, enabling enterprises to shift from reactive operations to predictive, AI-driven decision-making aligned with Industry 4.0 and sustainable manufacturing. Under its leadership, the company has demonstrated technological innovation, scalable product development, and commitment to building globally competitive industrial AI platforms. In recognition of its innovation, technological excellence, and contribution to AI-driven industrial transformation, the All India Management Association is pleased to present the IMA Dr. J.S. Juneja Award for Creativity and Innovation for MSMEs 2026 to Algo 8 AI Private Limited. We invite on stage Mr. Nandan Mishra, CEO and co-founder, to receive the award. Congratulations, sir. May I request you to kindly share your thoughts?
So, Algo8, our vision is to be the industrial AI operating system of the world. We solve a very simple yet complex problem that in a world where product lifecycle manufacturing is changing so fast, how do we still rely on static decisions? So we've applied AI there, done more than 300 deployments, gross impact of more than $250 million for our clients. We're lining up for a North American IPO right now. So, yep, it's been a journey of last 7 years. So, grateful for this journey and grateful to receive this award from sir and this in the name of Dr. J.S. Juneja. Thank you so much. Thank you. Thank you. Congratulations again, Mr. Mishra. Thank you, Dr. Juneja, for joining us on stage. The next recognition is conferred upon a leader whose illustrious career in management is marked by wide-ranging expertise and profound knowledge in the field, and who has made significant contributions to advancing management thought and practices outside the sphere of employment. Above all, a very close associate and a strong supporter of IMA. An accomplished business strategist and management expert, he has made a significant contribution to management and leadership excellence in India and overseas. A committed leader, he has strengthened KPMG in India and made it a valuable resource for government and companies. He has guided the firm through shifts in the economy, business and technology, ensuring relevance through capability enhancement. Under his leadership, KPMG has developed expertise in ESG and DEI advisory. An influential leader in the global KPMG organization, he holds key board positions globally and regionally. His strategic insight is valued in business forums, and he serves on the board of US-India Strategic Partnership Forum and is associated with Bombay Chamber and CII. A member of the IMA Council, he contributes to governance and supports research and award adjudication. Under his leadership, KPMG has partnered IMA on the India Management Capability Development Index and Women Leadership in Corporate India Survey, supporting award nomination. All India Management Association is pleased to bestow IMA Fellowship on Mr. Yazdi Nagpurwala, Chief Executive Officer, KPMG in India and member, IMA Council. May I request him to please join us on stage. Our heartiest congratulations to you, sir. We request Mr. Nagpurwala to kindly share his thoughts with us. Thank you very much to everyone at All India Management Association. This is, it's truly special for me, especially since I received this from Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji. I must tell him my original speech was written in Marathi, which I have now translated to English. IMA has been a pillar of India's management and leadership for decades. And over the past few years, my association has been truly enriching, especially in aspects of culture and collaboration, things that we miss today, given the disruption that we are seeing. And I accept this recognition with gratitude and with a renewed passion to give back to the profession what we've taken over time. So thank you very much. Thank you, sir. So ladies and gentlemen, may I once again request for a big round of applause for all of our awardees. Your contributions and achievements continue to inspire us all. May I now invite Mr. Vineet Agarwal to kindly introduce the Honorable Minister. Thank you. It is my honor and privilege to introduce the Honorable Minister. Longevity and consistency of leadership is often vital for effective and lasting transformation, and India is privileged to have a visionary, committed and bold leader in Shri Gadkari, who has changed India's transportation and logistics sectors over the past decade.
Under Mr. Gadkari's leadership, the network has grown by 60%. We have high-speed corridors, and clearly he is building a multimodal logistics corridor, nodes across the country, which I know for my sector has been very beneficial. His insistence on using digital and GPS tracking technologies and also using different technologies for road construction has created a different ecosystem for the industry. The roads and highways that he has built has created numerous industrial and economic hubs and added to India's economic growth and strength. A minister with a strong leaning towards self-reliance and clean mobility, he has relentlessly pursued mixing domestically produced agri-fuel with fossil fuels. He is also leading India's switch to electric vehicles and fostering hydrogen-fueled mobility. His vehicle scrappage policy has boosted sales of new generation vehicles by removing old vehicles from the roads, which has also helped in India's auto industry to grow and modernize. He is very passionate about road safety and has advocated several measures to create awareness and legislation for the same. He is truly a transformational leader. While everybody knows Shri Gadkari for his unique contribution to India's roads and highways, he has also played a stellar role in improving throughput and commercial potential and the commercial potential of Indian waterways. He is, across party lines, a very popular leader, former BJP president and multi-term MP from Nagpur. We are privileged to have the formidable Shri Gadkari ji with us, and we request him to address us. Thank you. आदरणीय टीवी नरेंद्रन जी, मिस्टर विशाल कंपानी जी, मिस्टर विनीत अग्रवाल जी, शेखा सेठी, सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, अनेक बार मुझे आपके कार्यक्रम में आने का मौका मिला। बीच में थोड़ा व्यस्तता के कारण 2-3 बार मिस हो गया, पर मुझे आपके यहाँ आने में, मेरे आने का आपको कितना फ़ायदा होता है मुझे इसकी आइडिया नहीं है, पर मुझे आने का बहुत फ़ायदा होता है। फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं बहुत बार एक बात को दोहराता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। एप्रोप्रिएट विजन फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से भविष्य की हमारी नीतियाँ क्या होगी, इस पे हमारे देश का भविष्य निर्भर होगा। प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने ये उद्दिष्ट रखा है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनना है, हमें वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनना है, हमें विश्वगुरु बनना है। और ये सब करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ कोई है तो वर्तमान काल में हमारी नीतियाँ क्या होगी, हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होगी, हमारे अलग अलग प्रकार की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ेगा, उसके आधार पर हमारे देश का भविष्य निश्चित होगा। और आज आने वाले समय में जो एस्टेब्लिश बातें थी वो बदल गई है। मेरे स्कूल के काल में हम लोग जब लड़ाई की बात करते थे तो एक बड़ा ट्रक होता था, राइफल लेके लोग बाहर घुसते थे, फिर जाते थे, फिर वो सब लड़ाई हम देखते थे, वही हमारी कल्पना थी। अब ड्रोन और मिसाइल के कारण पूरा बदल गया है, और इसलिए आने वाले समय में हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, और ये जो परिवर्तन का संबंध है नॉलेज के साथ है। और इसलिए मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आपके सामने रखूँगा कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड
and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. आज हम कौन सा रिसर्च कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उसके आधार पर देश का भविष्य निश्चित होने वाला है। एक समय ऐसा था कि बाकी अनेक मिनरल्स है, गैस है, अनेक बातों के बारे में, एग्रीकल्चर लैंड है, समुद्र किनारे है, इन सब बातों का इम्पोर्टेंस है, पर ये जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है, रिसर्च है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए आने वाले समय में हमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए। कल ही बड़ी खुशी हुई, हमारे कैबिनेट में भी बताया गया और आपको पता होगा कि तमिलनाडु में कल्पक्कम में हमने पहली बार, जो 1950 में हमारा प्रयोग शुरू हुआ था, जब भाभा जी थे तब शुरू हुआ था, पहली बार न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते थे। हमने थोरियम का उपयोग करके न्यूक्लियर पावर बनाई। अब आप समझ लेंगे कि यूरेनियम हमारे पास नहीं है और वर्ल्ड का 25% जो थोरियम है वो हिंदुस्तान के पास है, ये उड़ीसा और तमिलनाडु के इसमें। और बीच के समय में तो मैं शिपिंग मंत्री था, तब मुझे मालूम है कि बहुत बार, अब क्या बोले उसको, अज्ञान के कारण हमारा जो थोरियम बेस्ड जो रॉ मटेरियल था समुद्र के आजू बाजू में, उसका उपयोग कंस्ट्रक्शन में किया गया, रोड बनाने के लिए किया गया। यानी आप इमेजिन करो कि न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए यूरेनियम की कॉस्ट कितनी है, और यूरेनियम के तुलना में जब हम थोरियम बनाएंगे तो क्या होगा, और थोरियम से पावर बनेगी तो कितना फायदा होगा, आगे आप सब लोग सोच सकते हैं। इसलिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, इसमें प्रायोरिटी देना हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें मुझे लगता है कि हम लोगों को सोचना होगा। जैसे नॉलेज टू वेल्थ है, वैसा वेस्ट टू वेल्थ है, और ये एक सर्कुलेशन इकोनॉमी है जिसके तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट, इसमें देश में 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। और आपको इसलिए शायद मेरी बात को एकदम विश्वास नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 9 साल से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में टॉयलेट का पानी बेचने का काम करता हूँ, और जिससे हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 325 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। वो पानी को रिसाइकलिंग करके हम लोग कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनको देते हैं, और जिसके कारण हमको 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने सॉलिड वेस्ट में सेग्रीगेट किया, और अभी एक नीदरलैंड की कंपनी को लाया है, उसमें से प्लास्टिक, मेटल और ग्लास को रिसाइकल करते हैं, और ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर 28 टन बायो सीएनजी पर डे, अभी एक 15-20 दिन में प्लांट का इनॉग्रेशन है। तो आप समझ लीजिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और आपको और एक अच्छी बात बताता हूँ जो इकोनॉमिक्स है, कि केवल रोड में, टनल में और ब्रिजेस में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट संभव है ऐसा नहीं है। तो एक अच्छी केस स्टडी आप जरूर करिए कि मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था, तब मथुरा में 90 mld स्लज को मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था हाइब्रिड एन्युटी में, और हाइब्रिड एन्युटी में जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उसमें 40% भारत सरकार में हमने दी, उसको ग्रांट इन एड, 60% इन्वेस्टमेंट की गई, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली तैयार हुआ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, और आज 90 mld जो गंदा पानी मथुरा में, यमुना में जाता था वो बच गया, उसका पानी भी शुद्ध हुआ, और जो 100 रुपये का काम है वो 40 रुपये में हुआ। और वो जो पानी है, मैं रेलवे से आता था काफ़ी बार नागपुर से, तो मथुरा में रेलवे लाइन के बाजू में एक रिफाइनरी है इंडियन ऑयल की। तो उस समय हमारे वैद्य साहब अध्यक्ष थे, तो मैंने उनको एक बार बुलाया, मैंने कहा वैद्य साहब आपको रिफाइनरी को पानी लगता है ना? बोले हाँ। कहाँ से लेते हो? बोले उत्तर प्रदेश सरकार से लेते हो।
मतलब कितना पैसा देते हो? बोले 25 करोड़। मैंने बोला मैं आपके 5 करोड़ बचा देता हूँ, आप 20 करोड़ दीजिए। और हमने टेंडर निकाला कि जो पानी शुद्ध होगा वो रिफाइनरी को देंगे, वो 20 करोड़ साल के देंगे, और इसलिए 60% इन्वेस्टमेंट उसने इन्वेस्टर ने की और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हुआ। तो ये सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी ये इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। और गवर्नमेंट बजट के अलावा अगर हमने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अगर यूज़ किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मेरी समस्या ये है कि मेरे पास इतना पैसा है कि पैसा ही नहीं खर्चा होता है, बहुत पैसा पड़ा हुआ है। मैं आज अगर चाहता हूं तो 1 महीने के अंदर 15 लाख करोड़ मिला सकता हूं मोनेटाइज करके रोड को। अभी इनविट मॉडल में जब हमने हमारा इनविट का बॉन्ड इशू सब्सक्राइब किया था तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डेट तय हो गई, तब लड़ाई नहीं थी। और जिस दिन मैं अभी एक 10, 12, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जब लड़ाई बिल्कुल चरम सीमा पर थी, उसी दिन तब मैंने हमारे मेंबर फाइनेंस को बोला, अरे भाई तुमको और कोई दिन नहीं मिला, पूरे मार्केट में लोग चिल्ला रहे, सब डाउन हो रहे भाव, कोई ले नहीं रहा, कैसे होगा? बोले साहब ठीक होगा। तो बोला ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है, चलो। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारा इनविट मॉडल ऐसे स्थिति में 14 टाइम्स मोर सब्सक्राइब हुआ, ओवर सब्सक्राइब, इतना पैसा मिला। और इसलिए पैसे की भी कमी नहीं है। एप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट, इसका उपयोग करके हम हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। और ये एक्सेलरेट करने के लिए हमारे जो 3 इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, उसमें जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करने वाला पहला सेक्टर है सर्विस सेक्टर, 52 to 54% कंट्रीब्यूट करता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 22 to 24% करता है। और तीसरा मेरा सबसे प्रिय, मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। और मैं रोड और टनल वगैरह का मुझे ज़्यादा नहीं समझता, पर मैं एग्रीकल्चर में हूँ और मैं विद्वान नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे 17 डिलीट मिली है डॉक्टरेट्स, उसमें से 7 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में और वाटर कंजर्वेशन के लिए मिली है। तो मैं उसमें ही ज़्यादा काम करता हूँ। और मैं आपको एक बात आग्रह से कहूँगा कि आप अर्बन सेंट्रिक मत बनिए। जल, जमीन, जंगल, जानवर पर आधारित रूरल सेंट्रिक आइडियोलॉजी को, विजन को अपनाइए। और इसके लिए ये बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो केवल 14% है, और पॉपुलेशन जो है वो 60% एग्रीकल्चर पे बिलोंग करती है। और जब तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हम कम से कम 24-25 के ऊपर नहीं जाएंगे कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, तब तक आत्मनिर्भर भारत बन नहीं सकता, तब तक देश की इकोनॉमी बदल नहीं सकती। और इसलिए आने वाले समय में हमें एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। और ये अगर डेवलप होगी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मिरेकल होगा। अभी एआई आ गया है। मैं मेरे क्षेत्र में, हमारे ऑरेंज होते हैं, नागपुर ऑरेंज मेरे प्रसिद्ध है, तो मैं किसानों को लेकर पहले इसराइल गया था, बाद में स्पेन गया था, वैलेंशिया में। वहाँ पर एकड़ प्रोडक्शन 25 से 30 टन है और हमारे यहाँ का प्रोडक्शन 3 से 5 टन है। फिर हमने पूरा स्टडी करके एक बड़ा ऐसा ही स्क्रीन लगाया, और हमारी एग्रो विजन करके ऑर्गेनाइजेशन है, 5 लाख किसान उसके मेंबर हैं। और मैंने कहा कि हम लगातार वर्कशॉप करते रहते हैं, तो बोला टिकट लगाओ, 250 रुपये टिकट लगाए। 650 फार्मर्स आए। और अभी हमने बारामती में जो बारामती विज्ञान केंद्र है उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। और मेरे खेती पर मैंने क्या, मुझे भी आश्चर्य लगा, अब मेरे खेती पर जो एआई लगी है, वेदर स्टेशन लगा है, मॉइस्चर कितना है उसका एक इंस्ट्रूमेंट लगा है, और मेरा जो स्टेशन है वो सैटेलाइट से जुड़कर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मेरे खेत के फोटो निकालकर मुझे भेजती है, और वो ये बताती है कि अभी 8 दिन के बाद कौन सा डिसीज मेरे ऑरेंज पर आने वाला है, कौन से गन्ने पर आने वाला है, और अब पानी की ज़रूरत है क्या। और वो गाइडेंस पर काम करते हैं। और अभी हम 1000 किसानों को एआई का उपयोग करके, हमारा अभी वर्कशॉप 8 दिन में है, लोग अपने यहाँ एआई लगा रहे हैं।
तो प्रोडक्टिविटी बहुत गुना बढ़ जाएगी। और यही है कि आज मिल्क में कितनी बड़ी क्रांति हुई है। आप हमारे यहाँ देखिए कि आने वाले समय में मिल्क प्रोडक्शन में हमारी कितनी क्षमता है। हमारे यहाँ 1952 में एक गिर जात की गाय ब्राज़ील गई थी, उन्होंने उसमें रिसर्च किया और वहाँ उनके पास 60 लीटर वो गाय जो है दूध देने वाली तैयार हुई। और वो जो है उसका जो बुल तैयार हुआ टोरेंडो, उसका सीमेंस लेकर इंडिया में लाया गया और 2 लीटर के गाय को जब दिया गया तो गोरी बनी वो 15 लीटर की आई। अब आने वाले समय में हमने बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी लाई है और हमारे देश में 3 सेंटर खुल गए हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी होती है। और जो गाय 2 लीटर 3 लीटर दूध देती है उसका इकोनॉमिक्स तो होता ही नहीं, पुराता ही नहीं। तो अब 3 जगह सेंटर शुरू, एक सांगली में चितड़े डेयरी करके बहुत प्रसिद्ध है, उनके यहाँ एक सेंटर शुरू हुआ है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, और दूसरा है बारामती में जो पवार साहब के यहाँ हुआ है, और तीसरा नागपुर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी ने मैंने शुरू करा है। ये तीनों सेंटर का इनॉग्रेशन मैंने किया है। और इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम लोग जो विशेष रूप से जो बूल है जिसका यूज़ करेंगे उसकी माँ का दूध कितना है, उसके आधार पर वो सीमेंस अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी हर देशी गाय 20 से 25 लीटर दूध देने वाली अगर तैयार होती है तो गांव में एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार इकोनॉमिक्स आराम से हो सकता है। विजयपत सिंघानी आज नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया गाय के ऊपर, उनके यहाँ भी उन्होंने ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का काम किया था। और अब ये काम अगर देश में जोरों से शुरू है, उसमें AI भी आ गया, तो हमारी हर देशी गाय अगर 25 और 30 लीटर की बनेगी तो हमारा इकोनॉमिक्स से ही बदल जाएगा। और आज जो जर्सी और हुस्टन है वो भी 3 इसमें है, वो भी कन्वर्ट होकर देशी बन जाएगी। ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। तो आज रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल में आपको पता होगा कि मैंने अभी 1-1.5 महीना पहले हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर अपना जो ऑडिटोरियम है वहाँ एक CSIR के डायरेक्टर, उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था कि ये सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पीछे मैं बहुत दिनों से पढ़ा था। और उन्होंने एक काम किया कि जो राइस स्ट्रॉ है जिसको पॉपुलरली परली कहते हैं, जो जलाने के कारण हमारे यहाँ काफ़ी एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने परली से बायो बिटुमिन बनाया। और पहली बार नागपुर जबलपुर हाईवे पर हमने 1 किलोमीटर रोड बायो बिटुमिन डालकर प्राज इंडस्ट्रीज और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्बिनेशन में हमने बनाया और उसका टेस्टिंग होकर सक्सेसफुल हुआ। फिर मैंने सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन की साइंटिस्ट बहल करके उसको कहा कि तुम ये सरकारी दिमाग से काम मत करो, तुम इसका पेटेंट बेचो। और अब 15 लोगों ने पेटेंट खरीदी किया है और ये अब वो बिटुमिन बायो बिटुमिन बना रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि हमारे देश को 110 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन बिटुमिन की क्षमता केवल हमारी रिफाइनरी की है और 60 लाख टन बिटुमिन हम इंपोर्ट करते हैं। और अभी जब लड़ाई शुरू हुई तो 40% बिटुमिन के भाव बढ़ गए। अब मैं बहुत दिनों से जब थोड़ा ऑयल कंपनियों को मैंने बहुत आग्रह से कहा है कि यूज रबर टायर को हमें इंपोर्ट करने के लिए बनाई थी, तो मैंने भूपेंद्र यादव जी को कहा कि इसको अलाउ करो। बोले इससे तो हमारा इन्वायरमेंट खराब होगा। बोला नहीं, ये जो रबर टायर जो वर्ल्ड के वो लाओ। और मैंने व्यवस्था की है कि हमारे पोर्ट का जो ड्राफ्ट है अनेक पोर्ट का 18 मीटर बना दिया ताकि 2 लाख और 2.5 लाख टन का पनामा साइज शिप आए ताकि कॉस्ट कम हो जाए। और उसकी रबर पाउडर को 16% बिटुमिन में डाल सकते हैं, 7% प्लास्टिक डाल सकते हैं और उसके साथ 30% ये बायो बिटुमिन डालेंगे तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा हमारे देश में रोजगार निर्माण होंगे और फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं और इसलिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारा विजन ये देश के लिए, भविष्य के लिए सबसे बड़ा एसेट है और ये बहुत संभव है। अभी नरेंद्रन साहब को याद होगा, मैं शिपिंग मंत्री था तो इनके टाटा नगर के प्लांट के पास शायद सुवर्ण रेखा नदी है ना,
तो मैं इसको 110 नदियों को वाटरवेज में कन्वर्ट किया और मैंने इनको कहा कि तुम्हारा लोहा जो है तुम नदी से ट्रांसपोर्ट करो, तो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर आप रोड से जाओगे तो 10 रुपये लगता है, रेलवे से जाओगे तो 6 रुपये लगता है, और पानी से जाओगे तो 1 रुपया लगता है। आप यूरोपियन कंट्री में देखो, आप जर्मनी, फ्रांस, इटली कहीं भी जाइए, आपको हर नदी पर रिवर पोर्ट दिखता है, वाटरवेज है और कंटेनर पोर्ट तक जाता है। तो वाटरवेज के लिए मैंने कहा ये आप अगर इसका होगा तो उपयोग होगा। अब इन्हीं के यहाँ आयरन स्लैग होती थी। अब थोड़ी मेरी एक स्वीट तकरार है इनके बारे में। ये मेरे पास सब लोग आए थे कि इनका जो स्टील स्लैग है ये वेस्ट मटेरियल है। तो सज्जन जिंदल जी ने मुझे कहा कि तुम चिंता मत करो, हमारे वजह से लाइब्रेरी फ्री ऑफ चार्ज दे देंगे आपको रोड बनाने के लिए। मैंने बोला अच्छी बात है। हमने टेस्टिंग किया। अब जब मटेरियल लेना शुरू किया तो इन्होंने रेट बोल दिया उसका पर आज उसके रोड बने हैं। हमारा एक जोशी नाम के साइंटिस्ट हैं, सातारा जिले के, महाराष्ट्र के, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और वो एयर स्ट्रिप बनाई पूरी स्टील स्लैग की। अब रायगढ़ में इधर उधर हम स्टील स्लैग को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने कचरे का यूज़ कर रहे हैं, सैग्रीगेट करके 80 लाख टन कचरा हमने रोड में डाला। ये दिल्ली जरा मुझे कम मालूम है, ये UR2 बना है, ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से, उसमें हमने कचरा यूज़ किया। फिर मुंबई दिल्ली में यूज़ किया, फिर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में किया, अहमदाबाद डोलेरो में किया। 80 लाख टन कचरा सैग्रीगेट करके हमने रोड में डाला है। तो दिल्ली में जो गाजीपुर की टेकड़ी थी कचरे की, उसकी हाइट 7 मीटर कम हुई है और 2027 तक देश के पूरे सॉलिड वेस्ट को सैग्रीगेट करके हम वो पूरा कचरा रोड में डालने का हमने निर्णय किया है ताकि स्वच्छ भारत बने। अब मेरे मन में एक द्वंद्व है कि ये कचरा रोड में डाले कि ये बायोडाइजेस्टर में डाले, इससे CNG और हाइड्रोजन बनाए कि इसको रोड में यूज़ करें। अब मुझे लग रहा है कि हाइड्रोजन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी जीवन को बदल सकती है और इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी हमें, अगर ट्रांसफॉर्मेशन सही हुआ, अगर अच्छी दिशा में करनी है तो हम रिसर्च पे ताकत लगाएं। इसी होटल में मैं आया था, पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी मैंने। इसी होटल में मैंने टाटा के 3 ट्रक लॉन्च किए थे, तो टाटा मोटर्स के ट्रक 2 थे IC इंजन हाइड्रोजन पर और एक था हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर। जब इलेक्ट्रिक की कार मैंने पहली यहाँ लॉन्च की थी तो पत्रकारों ने मुझे एक प्रश्न पूछा था, बड़े बड़े पत्रकार थे। उन्होंने कहा था कि अगर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर ये रोड पर चलते चलते बंद पड़ जाएगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई गाड़ी बंद पड़ी? कोई नहीं पड़ी। अभी 80% राइज हुआ है। मैं जब अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात करता था तो लोग बोलते थे 2004 से, तो बोलते काय के लिए तुम बोलते हो, ये होने वाला नहीं है। अब इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक ट्रक आ गई, इलेक्ट्रिक बसेस तो सब वही आ गई। अब इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस आई। यानी आप देखिए कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब दिल्ली का प्रदूषण इसके कारण कम होगा, सब जगह का कम होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अभी आपको इंटरेस्टिंगली बताऊंगा, अभी मैंने नागपुर में LNG के पंप शुरू किए। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र जी को, इन्होंने हमारे यहाँ से भी लोहा नागपुर बेचते तो LNG ट्रक शुरू हो गए। वैसे इनका इसमें फ़ायदा बहुत है क्योंकि डीजल की तुलना में LNG, अभी LNG इतने में महंगा हुआ है पर काफ़ी सेविंग है। तो अभी एक बख्शी एंड कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है हमारे शिपिंग में। तो ये रेणुका शुगर वालों ने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ एक ट्रक बनाया और मुद्रा, कांडला और JNPT से वो कंटेनर यहाँ सोनीपत लेके आ रहे हैं और सोनीपत से कंटेनर पोर्ट लेके जा रहे हैं। मैंने उसका इनॉग्रेशन किया। अब उनकी जो ट्रक है 60 टन की इलेक्ट्रिक ट्रक, उसमें जो कंटेनर जाता है वो जहाँ 115 रुपये का डीजल लगता है वहाँ 20 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो आप समझ लीजिए कि कितना सेविंग होगा।
और 180 किलोमीटर एक बार वो चार्ज करके होता है, फिर बीच में उन्होंने पेट्रोल स्टेशन जैसे ये स्वैपिंग स्टेशन वो डाल रहे हैं और बिजली के ऊपर ट्रक चल रहे हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और यही हमारी सोच है कि हमारे देश में हम इंपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट को कम करके हम एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं। यही आप लोगों को सोचना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम इंपोर्ट करें, हम हिंदुस्तान में बनाएं और आगे चल के हम हमारा एक्सपोर्ट करके हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाएं। और यही हमारी टैगलाइन है। और वर्ल्ड में आज हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि आज हमारे यहाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंग, टैलेंटेड, ट्रेन, इंजीनियरिंग मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी देश में है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। रॉ मटेरियल सस्ता है और इसलिए आने वाले समय में मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमें एक्सपोर्ट में स्काई इज द लिमिट। हमारी गाड़ियां देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैंने मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक कार पहले लॉन्च की थी चाकंड में, तो उनके वर्ल्ड के चेयरमैन आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि इसके बाद हम इंडिया हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाएंगे और हम धीरे धीरे सब कार इलेक्ट्रिक पर बनाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। ये बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा, ये टू व्हीलर के 50% प्रोडक्शन टू व्हीलर का एक्सपोर्ट होता है। अभी ये हमारी पूरी सुजुकी, हुंडई, कल मैंने ये किया और एक 4 दिन पहले किया को और हुंडई को सर्टिफिकेट दिया भारत एनकैप रेटिंग का। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रेटिंग के कारण हमारी गाड़ी एक्सपोर्ट हो रही वर्ल्ड में, बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट का मार्केट खुल गया। जब 2014 में मैं मंत्री बना तो हमारे इंडस्ट्रीज का साइज था 7 लाख करोड़ और आज हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज है 22 लाख करोड़। अभी हमने 7-8 महीने पहले जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। अब वर्ल्ड में पहले नंबर पर यूएसए 79 लाख करोड़, सेकंड नंबर पर चाइना है 49 लाख करोड़ और थर्ड पर इंडिया है 22 लाख करोड़। और अब मिनिस्टर करके मेरी मिनिस्ट्री का टारगेट है कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 5 साल में वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये कठिन है पर ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ हो रही है, आपको ताज्जुब होगा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जॉब्स 4.5 करोड़ जॉब इंडस्ट्री ने दिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने। हमारे देश में भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी इस इंडस्ट्री ने दिया है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है और भारत को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना है, इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है, तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट को बढ़ाकर वर्ल्ड में हमको पहली नंबर पर पहुंचाना है। ये अगर करेंगे तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, कितने जॉब्स क्रिएट होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी बदलाव आ रहा है। अभी हम लोग एक टाटा के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। मैं जेकोस्लोवाकिया गया था स्कोडा की फैक्ट्री में, तो वहाँ मैंने वो फ्लैश चार्जिंग बस के पीछे था, तो मैंने उनको कहा टाटा को कि तुम इसको टेक्नोलॉजी को लो। उन्होंने अभी कोलैबोरेशन किया और हुबली में प्लांट डाल रहे हैं। वो बस 135 सीटर है और वो ऊपर में फ्लैश चार्जिंग है और हर जगह बस स्टॉप पर खड़ी होती है, तो 10 सेकंड में वो चार्जर नीचे आता है और वो 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होती है। और वो बस की कॉस्ट इतनी, केवल पावर कॉस्ट है उसमें, और लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा लगती है बस में। जब मैंने इलेक्ट्रिक का व्हीकल पहली बार आया था, लॉन्च किया था, तो $150 पर किलोवाट पर आवर कॉस्ट थी, अब वो $50 to $55 पर किलोवाट पर आवर आई। एंड आप समझिए कि कितनी कम आई। अब मेरे अंदाज से, अब लोग सच नहीं बताते, मुझे एक ने अच्छा कहा है कि किसी इंडस्ट्री वाले को उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मत पूछो। भाई ये भलते प्रश्न आप मत पूछते जाओ। और किसी फिल्म अभिनेत्री को उसकी उम्र मत पूछते जाओ, और किसी अखबार वाले को उसका सर्कुलेशन का नंबर मत पूछो, किसी टीवी वाले को उसकी टीआरपी मत पूछो।
क्योंकि वो उसके बहुत अनेक अनेक प्रकार की उसमें कलाकारी होती है। तो अब नेचुरली ये जो बस है उसमें हमने डिक्लेयर किया है कि हमारा किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो आप मुझे बताइए कि वहाँ एग्जीक्यूटिव चेयर, सामने लैपटॉप, एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस, और गाड़ी में बैठकर हमारे हाईवे ओपन कर देंगे हम। दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में पहुँच जाएंगे आप लैपटॉप पर देखते देखते सोकर। अभी 14 तारीख को हम दिल्ली से देहरादून का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, 2 घंटे में देहरादून। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में कार का है, बस 14-15 घंटे में जाएगी। और धीरे धीरे यही जैसे बस होगी वैसे हम लोग ट्रक भी बना सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम होगी। अभी हमारे ये IIM बेंगलोर और IIT चेन्नई और कानपुर ने एक अध्ययन किया, एक 5-6 महीने पहले किया था, और उन्होंने कहा कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 6% कम हुई है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% थी। अब हमारी 6% कम हुई, यानी 10% हुई। ये 6 महीने पहले की बात है। अब जो रोड हमारे रोज इनॉग्रेट हो रहे हैं, अभी बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में हुआ, मैसूर से बेंगलोर 1 घंटे में हुआ, अभी मेरठ से दिल्ली हमें 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। ऐसे देश में हम 40 हाईवे बना रहे बड़े बड़े। अभी इधर दिल्ली से कटरा बना रहे, श्रीनगर 8 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में। तो ये जो रोड बना रहे उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट को मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आज हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट चाइना के बराबर आई है, यानी सिंगल डिजिट में आई है। अगर हम लोग ये 6-7% कम करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में हम मोर कॉम्पिटिटिव बनते हैं। और इसलिए निश्चित रूप से हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, विशेष रूप से एनर्जी सेक्टर में, हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, 22 लाख करोड़। और ये 22 लाख करोड़ अगर इंडियन इकोनॉमी में आएंगे तो कितना फायदा होगा, ये मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए इंपोर्ट को कम करने के लिए अभी हमने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में भी काम किया है। हमने मक्के से इथेनॉल बनाना शुरू किया, तो मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल था, MSP 1800 रुपये क्विंटल थी, और मार्केट प्राइस 1200 क्विंटल, यानी मार्केट प्राइस कम थी, MSP ज़्यादा थी। जैसे मक्के से इथेनॉल शुरू किया तो मक्के का भाव 28 रुपये क्विंटल पहुंचा, तो यूपी और बिहार के गरीब किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए, क्योंकि मक्के का भाव बढ़ा। अब हम लोग ब्रोकन राइस से इथेनॉल बना रहे हैं, आसाम में नुमालीगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं, अभी शुगर केन जूस मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाने की बात चल रही है, जो डीजल का अल्टरनेटिव है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब लॉबीज है, जो 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करने में जिनको मलाई मिलती होंगी, वो जब हम कहेंगे कि इंपोर्ट खत्म होगा तो बेचारों का तो नुकसान होगा ही। तो हर प्रकार की लॉबी हमारे देश में होती है, पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये हमारे देश की थीम है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बने, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बने, बिटुमिन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बने, और ये संभव, और हवाई ईंधन दाता नहीं हाइड्रोजन दाता बने, और ये सब हो गया। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे इसमें जो विस्तारा करके एयरलाइंस है और स्पाइस जेट के दोनों हवाई जहाज बायोफ्यूल डालकर हमने टेस्टिंग यशस्वी किया। 3 साल पहले हमारे हेलीकॉप्टर्स पूरा इथेनॉल डाल के चले। अब एविएशन फ्यूल में पानीपत में जो प्लांट बन रहा है, इंडियन ऑयल का शुरू हुआ है, वो परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहा है। तो आज ग्रीन फ्यूल के रूप में हवाई ईंधन में आप लिख के रखिए कि 5 साल में हिंदुस्तान सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने वाला पहले नंबर का देश बनेगा, पहले नंबर का ग्रीन फ्यूल। और आज धीरे धीरे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन का भी विकास हो रहा है। अभी हाइड्रोजन में भी 2 प्रॉब्लम है, डार्क एरिया है।
एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन। मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है हाइड्रोजन पे चलने वाली, मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, मिराई का अर्थ है फ्यूचर। अब वो गाड़ी जाती फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के लेबॉर्ट्री जो है, रिसर्च लेबॉर्ट्री, वहाँ हाइड्रोजन भरने के लिए। तो वो ट्रक में लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ आते जाते ही हाइड्रोजन खर्चा होगा। और मैं इसलिए करता हूँ कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिस इज पॉसिबल। अब वो गाड़ी जो है हाइड्रोजन पे चलती है, मर्सिडीज जैसी है, कोई जीरो पोल्यूशन। और आज मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन हमारा भविष्य है और ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम तैयार करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है ब्राउन हाइड्रोजन, और जो म्यूनिसिपल वेस्ट और बायोमास का यूज़ करके बायोडाइजेस्टर से मीथेन निकालकर हाइड्रोजन निकलेगा वो ग्रीन हाइड्रोजन। और जो पानी से निकलता है इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से वो भी ग्रीन है, पर इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस में 1 kg हाइड्रोजन को 50 यूनिट पावर लगती है, वही 150-200 रुपये की हो गई। तो मैंने सब साइंटिस्ट को मैं कहता हूँ कि $1 पर kg हाइड्रोजन मिलना चाहिए। वो बोलते संभव ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए संभव है, आपको करना ही पड़ेगा। इट्स पॉसिबल। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट जीरो हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये हो सकता है। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और बायोमास का उपयोग करके बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन तैयार करके हाइड्रोजन निकल सकता है। बहुत लोग करने लगे हैं। और अभी हमने, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी शुरू किया है हमने, जो हाइड्रोजन के ऊपर है, क्योंकि हाइड्रोजन यही भविष्य है। और हाइड्रोजन में जो हम कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ से ट्रक को झंडी भी दिखाई है, इसको 600 करोड़ का है। और टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वोल्वो, एनर्ट, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, रिलायंस, ये सब उसमें है। और 10 रूट है जहाँ 9 हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन है। प्रॉब्लम है हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन की कीमत आती है 6.5 करोड़। अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इंडिया में इस पर रिसर्च करके ये कॉस्ट हम कम कैसे करें। ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन ये डार्क एरिया है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसके कारण निश्चित रूप से हाइड्रोजन हमारे भविष्य का फ्यूल है। हमारे जो 10 रूट है, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, साहिबाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगा नगर, तिरुवनंतपुरम, कोची, कोची, इडापल्ली, जामनगर, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम, बयावरम। अब ये हम लोग हाइड्रोजन की बस भी चलाने वाले हैं और ये भी काम बहुत शुरू हो गया है। इसमें डार्क एरिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट और रिसर्च करने की ज़रूरत है। और जो थीम यही है कि हम इंपोर्ट को कम करें। और किसी भी सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। 1 इज एथिक्स, सेकंड इज इकोनॉमी एंड थर्ड इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आपको 40% जो एयर पोल्यूशन है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। और इसलिए हम अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का उपयोग करें, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करें। हमारे ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी और बढ़ेगा, और एक तरफ देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। और इसलिए आने वाले समय में इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ये विदाउट रिसर्च और विदाउट टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हमारे यहाँ दिल्ली आईआईटी के एक इंजीनियर को फोर्ड कंपनी ने अमेरिका में अवार्ड दिया। उसने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी पे काम किया। और इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो रिसर्च को प्रायोरिटी दें और नए नए इनोवेटिव रिसर्च जो है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। रिसर्च नीड बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। कौन सा वेस्ट रॉ मटेरियल वहाँ उपलब्ध है उसके आधार पर रिसर्च होगा तो फायदा होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी देश की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का अध्ययन करते हुए हमें हमारे रिसर्च की विजन पक्की करनी होगी। और ये जो रिसर्च की विजन है, ये आने वाले समय में हिंदुस्तान को बहुत ताकतवान बनाएगा। अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर में हमने डिफेंस को ओपन किया। इस साल 45,000 करोड़ का प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस में एक्सपोर्ट है। आप लिख लो मेरे से कि आने वाले 5 साल में जिस प्रकार से ये चल रहा है तो 5 लाख करोड़ हमारा डिफेंस में एक्सपोर्ट होगा। हर फील्ड में पोटेंशियल है।
और आने वाले समय में विश्व में हम जिस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अभी हमने अलग अलग अभी मैंने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, हमने 15 साल के ऊपर कार और बस को स्क्रैप करो। अब हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं, कॉपर इंपोर्ट करते हैं। हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे देश में इतना भंगार है, ये इतनी गाड़ियाँ हैं, इसका एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर सब रिसाइकलिंग करेंगे तो कितना बड़ा पैसा बचेगा। अभी आने वाले समय में मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली, पर स्टील इंडस्ट्री में भी हम लोग काफ़ी बड़े प्रमाण पर वर्ल्ड से स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं। अगर यही हमारे देश में स्क्रैप अच्छा मिल जाएगा तो ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्रैप अगर हमको चाहिए तो हम पुरानी गाड़ियों को इंपोर्ट करें। मैंने कांडला में 18% ड्राफ्ट किया, मुंद्रा में 18% ड्राफ्ट है, JNPT में 14.5 मीटर है। पूरे वर्ल्ड का भंगार इकट्ठा करके लाइए और हम उसको रिसाइकलिंग करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कंपोनेंट की 30% कम हो जाएगी। तो यही बात है कि अप्रोप्रिएट विजन फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। You need to identify which are the important fields where the potential is there, और उसके आधार पर रिसर्च करके अच्छी टेक्नोलॉजी, प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अगर आप गोबर से गोल्ड बनाएंगे और बोलेंगे इसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए तोला है तो कौन फायदा क्या है बना के। अगर कॉस्ट इफेक्टिव है तो फायदा होगा। और इसलिए आने वाले समय में हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मैं ये मानता हूँ कि हमारे सभी क्षेत्र में निश्चित रूप से भविष्य का जो दिशा है, भविष्य की डेवलपमेंट को, विश्व की डेवलपमेंट को ध्यान में लेकर हम कौन से पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करके हम कौन सी बातों को डेवलप कर सकते हैं। और नॉलेज ये पावर है। जैसे वर्ल्ड में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वेल रिकॉग्नाइज है, रिस्पेक्टेबल है। मुझे एक बार जापान के प्रधानमंत्री जी ने पूछा था कि आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है इनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, कितने होशियार कैसे हैं। हमारे डॉक्टर, अमेरिका में 10 डॉक्टर में से 6 भारतीय है, यूके में यही है। हमारा ब्रेन जो है, ताकत हमारी बहुत बड़ी है। फोकस हमको ठीक प्रकार से करना है। भविष्य की आवश्यकता क्या है, भविष्य में कौन से एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, कौन से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में हम उसमें रिसर्च करके आगे जा सकते हैं। और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में केवल ब्लू इकोनॉमी, ये इसकी फिशिंग की 7 लाख करोड़ की बन सकती है। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो आपको मालूम है ये श्रीलंका, अपना हमारे जो मच्छीमार है ये तमिलनाडु से श्रीलंका में घुसखोर लफड़े होते थे। तो उस समय कोचीन के हमारे एक सेंटर में मैंने उनको इनकरेज किया। उन्होंने एक ऐसा जहाज़ बनाया कि जिसके ऊपर 1 करोड़ 20 लाख का है, उसमें बर्फ़ भी बनाते हैं, सब कुछ है, और उसकी ताकत 100 नॉटिकल माइल समुद्र में जाने की है। और हमारी जो फिशिंग बोट है वो केवल 10 नॉटिकल माइल जाती है, और हमारे 100 नॉटिकल माइल जाएंगे तो वहाँ बहुत फिश पड़े हुए हैं। तो हमारा फिश का प्रोडक्शन 7 गुना बढ़ सकता है अगर ये ट्रॉलर हमने बनाकर यूज़ किए तो। पहली बार मैंने तमिलनाडु के जो फिशरमैन थे उनको दिए। अब पूरे उड़ीसा, मुंबई, महाराष्ट्र सब जगह पर अगर हम ये फिशरमैन को ट्रॉलर देंगे और 100 नॉटिकल माइल जाके करेंगे तो हमारी फिशिंग की इकोनॉमी 7 लाख करोड़ की बन सकती है, और एक्सपोर्ट उसमें सबसे ज़्यादा मोर देन 50% हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसलिए यही बात है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड टू फाइंड आउट विच आर द बेस्ट टेक्नोलॉजी। हमारी होगी तो हमारी यूज़ करेंगे, नहीं होगी तो दुनिया से लाएंगे। और जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, वी नीड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट at the same time without compromise with the quality. Honesty, credibility and goodwill is the biggest capital of 21st century. हमें क्वालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। और इसलिए यही पोटेंशियल के आधार पर जो फील्ड हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन फील्ड के लिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे तो विश्वगुरु बहुत जल्दी बनेंगे और सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे, और जिसमें आप जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा। और निश्चित रूप से आपके कंट्रीब्यूशन से आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी, आपके इस उद्बोधन के लिए आपका धन्यवाद एवं आभार। May I now request Mr. Vishal Kampani to give the concluding remarks. Shri Gadkari ji, Minister, Road Transport and Highways, my colleagues Naren, Vineet and Rekha, ladies and gentlemen, it's my privilege to conclude this fascinating session today. Honorable Minister, IMA is very grateful for you to join us at this NLC and share your thoughts with us. It was very impressive how you articulated all the various business prospects for Indian industry and across sectors like energy, infrastructure, agriculture, manufacturing, with a very deep focus on technology and a very deep focus on how we can use knowledge and ways to create wealth. Thank you also for presenting IMA Fellowship and Awards. IMA truly appreciates your friendship. Yesdi, congratulations on receiving IMA Fellowship. IMA greatly values all the help that you provide, and KPMG provides us in conducting studies, research, and the various awards that we give. And congratulations to you, Nandan, CEO and co-founder Algo and AI, and best of luck for your IPO. Ladies and gentlemen, with that, I won't hold you back to lunch. Thank you very much.